Hi, welcome to Abstract Cat. Today I discuss projectile motion. So we consider the motion in a projectile, an object that is in flight after being thrown or projected, or object that is in flight after being thrown or projected. That's called a projectile motion. The motion is called the projectile. So when a man throw an object like cricket ball, baseball or football in air like this is called a projected or thrown. This is called the projectile. This is called a projectile, and the motion of the projectile is called projectile motion. Okay, when I thrown a ball or object, is that the object or ball is called projectile, and the motion of that ball or object is called a projectile motion. Okay, so it look like draw a thrown a object or a projected or a projectile. The object is known as a projectile. So in two-dimensional case, this is the x direction and here is y direction. If someone A, B, C, D, a boy or a girl thrown a object or a projectile or in air, and the projectile move like this or follow that yellow path, and a boy, this boy or a girl thrown that cricket ball or football in v0 velocity. In v0 velocity पे एक बॉल को हिट किया और किक किया और थ्रो किया इन एयर, एंड द येलो पाथ इज द बॉल कैसे मूव हुआ, एंड द v0 इज दैट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के ऊपर ये बॉय ने थ्रो किया बॉल को. दिस बॉल इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल. ओके, दिस रिमेंबर दैट द बॉल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड मोशन, जो बॉल जिस पाथ पे जैसे मूव करेगा उस पाथ का बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कैसे मूव कर रहा है. ओके, इन द एंगल इज थीटा 0. बॉय थ्रो ए बॉल और प्रोजेक्टाइल विद द एंगल with respect to horizontal or ground is theta 0. The angle is theta 0. So in previous lecture we discussed if the v0 is a position vector. If let us assume v0 is a position vector, so here is the x component and here is a y component. So here the x component is the range or horizontal distance. The x component is known as, in projectile motion, is a horizontal distance, and y component is the maximum height. But the projectile maximum height is defined by a y component. So in x component we know that is the in right angle, here is a right angle triangle, so angle is theta 0, that is a base, that is perpendicular. So we know that is a v0. I doesn't know the base x or base, that's the range or horizontal distance. So in case of horizontal distance unknown x, base by hypotenuse v0, that is known by cos theta 0. So x equal to v0 cos theta 0. That's called a range. Okay, and the maximum height or any height of projectile, if that is a y, here is also y. So perpendicular by hypotenuse v0 is known, that is sin theta. So y equal to v0 sin theta 0. If v0 is the initial velocity, जो वेलोसिटी बॉल को थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, बॉय ने v0 वेलोसिटी के ऊपर v0 वेलोसिटी से थ्रो किया, तो बॉल येलो कलर पाथ फॉलो करके ऐसा ऐसा जाके ऐसा ऐसा एंड हुआ. तो ये हो गया इसका रेंज, एंड दैट इज द मैक्स हाइट. अब हम लोग
मैक्स हाइट और रेंज का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका तो इक्वेशन डेवलप करेंगे, बहुत ही इजी है. सो यू नो दैट the range or x axis is defined by a range of maximum horizontal distance. So like ये पकड़ लो, ये विराट कोहली है, विराट कोहली ने बल्ला घुमाया, एक गेंद को हिट किया टाइमिंग करके, यहाँ पे बाउंड्री के बाहर 6 रन 6. The ball is known by a projectile and that distance is range maximum distance and that is a maximum height. बॉल कितना ऊपर उठा है, कितना ऊपर उठा है, that is known by a height and that is range. अब विराट कोहली ने टाइमिंग करते टाइमिंग ना, बैट ने कहते हैं ना ये अच्छा गुड टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग हुआ बॉल के साथ, मीन्स बैट एंड बॉल के साथ गुड कनेक्शन हुआ. मतलब कोई एक वेलोसिटी से v0 वेलोसिटी को बैट घुमाया तो पहला इनिशियल वेलोसिटी बैट का क्या था, v0 वेलोसिटी, बैट का इनिशियल वेलोसिटी था v0. सो ऐसा मूव हुआ. ओके, दिस पाथ इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ. सो इफ रेंज दैट इज ए x डिस्टेंस, हियर इज अ y. So x maximum range is defined by, so v0x, we know that the total displacement, so velocity times t. So you know that v0x or x axis, so v0 cos theta 0, so v0 cos theta 0 time t, that is the x. Okay, and here and y component is, so y, in case of y the maximum height, बॉल कितना ऊपर उठा है उसको बोलेंगे हम लोग y. That y is defined by basic equation of the motion number 2, equation number 2. So initial velocity क्या होगा इसका, v0 sin theta 0, v0 sin theta 0, v0 sin theta 0, that the initial velocity times t plus or minus plus, not a पहले half a. What does it mean a? So against the gravity, so gain against the gravity उठा, so minus g, half a g t square. Okay, so here that minus come in that portion. Okay, so that is the equation number 1, equation number 2, here is the equation number 3. Clear? Now take, so vx or v0x, so in case of basic equation number 1, in case of basic equation number 1, so if vx, x एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी क्या होगा, v0 cos theta 0, right, and basic equation number इक्वेशन क्या था, vy अगर मैक्सिमम हाइट, अगर गेंद ऊपर उठ जाता, अगर पकड़ लो बैट के टिप पे टच होकर गेंद सीधा ऊपर उठ गया, सीधा एकदम ऊपर, एकदम गेंद ऐसा आया तो 90 डिग्री ऊपर उठ गया, तो क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा होगा. तो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होगा, कितना ऊपर जाएगा, बॉल जितना ऊपर जाएगा, पकड़ लो बैट कर रहा था, बैट करते करते बैट के एकदम एज पे बॉल लग के बॉल पूरा सीधा ऊपर उठ गया. हो सकता है ऐसा होता है. तो क्या होगा, कितना ऊपर जा सकता है, तो v0 sin theta 0, जितना ऊपर जाएगा वेलोसिटी क्या होगा, कमता जाएगा, वेलोसिटी इज लेस, सो v इक्वल टू u माइनस gt. अगेंस्ट द ग्रेविटी वेलोसिटी इज लेस, जितना ऊपर जाएगा वेलोसिटी इज लेस, सो ड्यू टू माइनस g, so vy इक्वल टू v0 sin theta 0 माइनस gt.
That's the equation number 4. Here the equation number 5. So equation of the path of projectile. अगर projectile path का equation क्या होगा, इस path का equation क्या होगा, इस path means a ball, a projectile is known by a ball, इस ball का equation क्या होगा. Now we develop a basic equation. Okay, clear हो गया. projectile क्या है, projectile motion क्या है, right? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर कर दूंगा. Equation of path of a projectile. Equation of a path of projectile. Now, so we know that the y equal to, in case of equation number y equal to, develop v0 sin theta 0 times t minus half gt square. Okay, now replaced by gt, t is replaced by vy by v0. Now the equation is replaced by the first equation. So x equal to v0 cos theta 0 t. So that is t equal to x by v0 cos theta 0. So v0 sin theta 0, इस इक्वेशन पे हमने t का वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन आया था, उस t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा. रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, दैट इज t इक्वल टू x बाई v0 cos theta 0 माइनस हाफ ऑफ g x बाई v0 cos theta 0 होल स्क्वायर. Okay, so here the v0 sin theta 0 by cos theta, you know that is tan theta 0. The x tan theta 0, here is the y minus half, here in that portion g x square by v0 cos v0 square cos square theta 0. Okay, so here is a path equation, projectile path equation. Clear? And that path is obey like y equal to, similar look like tan theta 0 x minus half v0 square, so g by v0 square half v0 square theta 0 times x square. This part, bracket part, is a constant part. So this equation is look like y equal to ax plus bx square. And a and b are a constant. So a equal to tan theta is a constant term. G also know the gravitational acceleration is also a constant. V initial velocity is also constant. Cos square theta 0 is also constant. So that is a two constant part, and x and x square are the variable part. Okay, so is the path is look like a parabola path, because this is equation known by a parabola equation. So its path is look like a parabola. राइट, एंड पैराबोला पाथ कैसे दिखेगा, सिंपल से इलाबोरेट करके देख लेते हैं. पकड़ लेते हैं धोनी और विराट कोहली, कोई एक प्लेयर एक गेंद को हिट किया,
देन ऐसा किया, ऐसा एंड हुआ। तो ये है प्रोजेक्टाइल, ये है प्रोजेक्टाइल का पाथ। पकड़ लेते हैं v0 वेलोसिटी से हिट किया और ये एंगल है थीटा 0। सो दैट इज द v0x I cap, this portion, and that portion is v0y j cap। नेक्स्ट क्या हुआ, गेंद अगर इस पॉइंट में पहुंच गया तो इसका इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगा, इधर होगा। तो v0x I cap इधर रहेगा v0y j cap। नेक्स्ट गेंद अगर इस टिप पे पहुंच गया तो वेलोसिटी क्या होगा, इज पैरेलल टू x एक्सिस और रेंज। सो हियर इज अ y and that is equal to v0x I cap, but v0y j cap is equal to 0. So that is only a x component, not y component. So अब मैक्सिमम हाइट पे v0y का कोई वैल्यू व कोई v ऑफ इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट गेंद नीचे आ गया, नीचे अब क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, v0y j cap in opposite direction। also this portion also be a v0y is the negative direction। so v0y यहाँ पे कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, नीचे आ गया तो इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर हुआ कैसे डायग्राम चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ से निकलेगा, मैक्सिमम हाइट पे हम लोग v0y का वैल्यू, जो v0 का y कंपोनेंट का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, राइट। नाउ कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, बिकॉज this is equation a parabola equation and this projectile path equation also be a parabola followed by that equation। clear? now calculate the time of maximum height। so time of maximum height, time of max height। ओके, सो मैक्सिमम हाइट जाने के लिए क्या टाइम लगेगा, पकड़ लेते हैं vy इक्वल टू क्या था, vy इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 माइनस gt। t का मैक्सिमम हाइट दे रहे हैं, तो vy का कंपोनेंट क्या था, और टिप पॉइंट पे मैंने क्या बोला, वीडियो को पीछे करके देख लो, यहाँ पे बोला था v0y इक्वल टू 0 इन केस ऑफ maximum height, so that is equal to 0। so v0 sin theta 0 that is equal to gtm। so tm equal to v0 sin theta 0 by g, that is the maximum height time, the time of the maximum height। so maximum height पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, so tm equal to v0 sin theta 0 whole by g। नेक्स्ट और TF टोटल फ्लाइट टाइम, अगर गेंद यहां से यहां तक गया तो टोटल फ्लाइट टाइम दैट इज नोन बाय TF, दैट इज द मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, और टोटल फ्लाइट टाइम क्या होगा, ओके, दैट्स TM इज यहां तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, ये होगा TM। एंड TM इज द फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पे अगर गेंद हवा में कितने टाइम तक रहा है, हवा में कितने टाइम गेंद था, तो उसको कैलकुलेट टाइम लगा क्या, TF। सो दैट इज TF इक्वल टू क्या होगा, इसका डबल होगा, सिंपल। सो 2 हाफ एंड इज अनदर हाफ, so that is 2v0 sin theta 0 by g, that is equal to 2tm। so TF equal to 2tm, simple। और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, if y equal to 0 in equation 3.48। so यहाँ पे क्या था,
y इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 टाइम t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू अगर 0 पुट कर लेंगे, तो y का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये 0। नेक्स्ट दैट इज कहाँ से आया, सो दैट इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 t दैट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो माइनस माइनस का tt, तो 2 v0 साइन थीटा 0 बाई g दैट इज इक्वल टू t। ओके, कहां से आ गया देख लिया हमने। नाउ दैट्स द कैलकुलेट ऑफ TF फ्लाइट टाइम। सो TF इक्वल टू, अगर 2 कॉमन लिया तो ये रह गया TM, सो TF इक्वल टू 2 TM। क्लियर। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, टाइम मिल गया तो हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल 2 या 3 मार्क्स का तो जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को ठीक ठाक याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट इक्वेशन को डेवलप करें, कैसे कहाँ से इक्वेशन आ रहा है, उसका पीछे थ्योरी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट मैक्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। सो यू नो दैट द y इक्वल टू और मैक्सिमम हाइट h मैक्स दैट इज इक्वल टू, इन इक्वेशन नंबर पिछले वाला पे ये पहला इक्वेशन, सो y इक्वल टू क्या था, सो y इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 मैक्सिमम हाइट मीन्स tm मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो दैट इज tm इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 बाई g। नेक्स्ट हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ gt दैट इज v0 साइन थीटा 0 बाई g इज होल स्क्वायर। सो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू v0 का डबल v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई g माइनस हाफ g बाई v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई g स्क्वायर, कट कट, सो दैट इज इक्वल टू ओके, सो 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू v0 साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई 2g दैट इज द h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। क्लियर। इसको बॉक्स कर लो, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन आ गया, सॉरी v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, सिंपल बॉक्स कर लिया, कर लो इसको। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना दूर तक हॉरिजॉन्टली कितना दूर एक प्रोजेक्टाइल और एक बॉल, क्रिकेट बॉल और फुटबॉल कितना दूर तक जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग रेंज। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे रेंज, रेंज का वैल्यू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यू नो दैट पहला इक्वेशन क्या था, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था, रेंज। पहला इक्वेशन क्या था, इफ r दैट इज इक्वल टू v0 cos theta 0 time t। Now we know that the t equal to total flight time. So v0 cos theta 0, we know that the tf, here the t is replaced by tf, total flight time. We know that the total flight time is 2 v0 sin theta 0 by g,
So if V0 square 2 sin theta 0 cos theta 0 by G. So 2 sin theta times cos theta, we know that that's sin 2 theta. So V0 square sin 2 theta 0 by G, that is equal to maximum range. तो जो इक्वेशन हमने बनाया उसको बॉक्स कर लो, बार बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ये जो बॉक्स वाला इक्वेशन हम लोगों को बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो पढ़ते रहना, जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, दिमाग पे रह जाएगा, रट्टा मारने की एकदम ही ज़रूरत नहीं है। तो ठीक ठाक पढ़ते रहो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना चाहो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन प्रेस कर दो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।